Good morning, class. Today I am going to do the planning process from the chapter planning. Okay, in the planning process, there are 7 steps that the manager has to perform, and the first step is setting the objectives. Setting objective is the first most step that the manager perform to achieve its objective or the goals. The manager must specify the goals or the objective very clearly, and it must be set for the entire organization, for all the department units and the employee. For example, there is a manufacturing company who want to increase the profit by 25% by selling out a stationery item. So the objective for the manufacturing company is to increase the profit by selling the stationery item. Okay, this is the first step in the planning process to set the objective. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बेसिकली इज द टारगेट और द गोल दैट द मैनेजर वांट टू अचीव. तो प्लानिंग प्रोसेस में भी हमारा सबसे पहला टास्क, जब तक हम ऑब्जेक्टिव को सेट नहीं करेंगे या टारगेट को सेट नहीं करेंगे, हमारे बाकी जो भी स्टेप हैं हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे. ओके, सो सेकेंड स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज डेवलपिंग द प्रेमिसेस. Premises means the assumption. So after setting the objective, the next step is to develop the premises. Planning is, as we know, planning is always done for the uncertain future. Therefore, the manager is required to make the certain assumption about the future, which are considered to be the best material upon which plans are to be made. As we all know, हमें क्या पता है कि जैसे ही हम अजम्पशंस बनाते हैं, वो हम किस बेसिस पे बनाते हैं? अजम्पशंस अपनी फ्यूचर के बेसिस पे, और फ्यूचर हमारे को पता है जो कि है अनसर्टेन है. ठीक है, तो अजम्पशंस जो होती है, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अजम्पशंस होती है. एक होती है हमारी इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल. इंटरनल प्रेमिसेस इंक्लूड द कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी एक्सेट्रा. And the external premises include the government policies, business competition, taste of customers, etc. तो बेसिकली जैसे ही हमने टारगेट को सेट करा, अब हम अपनी अजम्पशंस बनाएंगे. अजम्पशंस में हो सकता है कि हम उस टारगेट को कैसे अचीव कर सके. तो कितना कैपिटल, कितना लेबर, कितना रॉ मटेरियल की हमारी को रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती है, कौन कौन सा बिजनेस कंपटीशन हमारे को फेस करना पड़ेगा. तो इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर हम अपनी कुछ अजम्पशंस लेट डाउन करते हैं. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस is identifying the alternative course of action. Once our object is set and we develop the premises, the next step is identify all the various alternatives that are available to reach that objective that we have set. So there are many alternatives, and the manager must know all the ways to reach that objective. For example, if the goal of a firm is the growth of a business, then the firm has many ways like expansion in same product line, taking over some other business company, producing new product, etc. Suppose अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हमारे को अपना फर्म को क्या करना है, ग्रो करवाना है, यानी कि और एक्सपांड करना है. अब इस ग्रोथ को और या फिर एक्सपांशन के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि हम ग्रोथ किस सेंस में कर रहे हैं. अपना बिजनेस एक्सपैंड करें सेम प्रोडक्ट लाइन में, या फिर मर्ज करें किसी और कंपनी के साथ, या और दूसरे प्रोडक्ट्स हम क्या करें, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, जिससे हमारे फर्म की क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए. तो जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं ग्रोथ के रिगार्डिंग, मैनेजर हर एक ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स. In this step, various alternative course of actions are evaluated to select the best alternative
through which the set objectives can be achieved. The alternatives should be compared in light of the objective, cost, risk, planning premises, benefits, availability of capital, etc. तो अब क्या होता है स्टेप में एवेल्युएटिंग में, जैसे ही हमने सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर दिए, अब हम क्या करेंगे, हर एक ऑल्टरनेटिव को एवेल्युएट करेंगे. एवेल्युएट किस सेंस में हो सकता है कि किस में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, किस में ज़्यादा रिस्क हो सकता है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, किस में ज़्यादा कैपिटल यूज़ होने वाली है. तो वेरियस ऑल्टरनेटिव के, यानी कि हम हर एक ऑल्टरनेटिव के पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड देखेंगे. इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमने ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करा, हर एक आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव को अब हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, यानी कि उसके पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखते हैं. नेक्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग एन ऑल्टरनेटिव. Now, once we evaluate each alternative, the next step that the manager performs is to select the best alternative among the evaluated alternative. मैनेजर क्या करता है, अब डिसीज़न लेता है कि जब उसने एवेल्युएट कर लिया कौन सा बेस्ट ऑब्जेक्टिव है, कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जिसको वो अडॉप्ट करे और आगे इम्प्लीमेंट करे, जिससे कि उसका जो भी टारगेट है वो अचीव हो सके. ओके, नाउ द सिक्स्थ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. This step is concerned with putting the plan into action. This step involves organizing for labor and purchase of machinery. So what does it mean? Once we have select the alternative, now in this step we will put or implement the selective alternative into the action. Okay, अब हम क्या करेंगे, रियल या एक्चुअल सिचुएशन में हम सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव को पुट करेंगे या फिर इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को, जिससे कि हमारा जो भी टारगेट है हम उसको अचीव कर सकें. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो अप एक्शन. इट मीन्स टू सी whether plans are being implemented and the activities are performed according to the plan. The manager monitors the plan carefully while it is implemented because it helps to verify whether the premises are holding true in the present condition. अब फॉलो अप एक्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है, फीडबैक देना. अब मैनेजर क्या करेगा, जब उसने सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करा रियल लाइफ सिचुएशन में, तो वो क्या देखेगा, क्या वो इम्प्लीमेंटेड प्लान एकदम ठीक था, हमारे ऑब्जेक्टिव उससे अचीव हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं. तो मैनेजर बहुत केयरफुली मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेड प्लान को और चेक करेगा कि हमारे जो भी प्रेमिसेस, यानी कि जो भी असम्पशंस थे अबाउट रीचिंग दैट और अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव आर होल्डिंग ट्रू और नॉट. So these are the 7 basic steps that the manager is performed. Let's see with the following tabular form also. First is setting objective, जिसमें हम टारगेट को सेट करते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपिंग द प्रेमिसेस. प्रेमिसेस में हम अपनी अजम्पशंस बनाते हैं कि हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे रीच कर सके. फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. इसमें सारे जितने भी हमारे पास मेथड हो सकते हैं, हम हर एक ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई करने के बाद व्हाट वी डू, वी इवैल्यूएट ऑल द आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्स, यानी कि हम उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. और फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एवेल्युएट हो जाएंगे सारे ऑल्टरनेटिव, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यानी कि डिसीजन मेकिंग लेंगे कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो हमारे प्लान को अचीव या जो हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करे. एंड नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान. इसमें हम क्या करते हैं, अपने सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव को इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए.
एंड द लास्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज फॉलो अप एक्शन. इसमें हम क्या करेंगे, फीडबैक यानी कि मॉनिटर करेंगे कि हमारा इम्प्लीमेंटेड प्लान हमारी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग एकदम ट्रू था या फिर नहीं था. ओके, so these are the major 7 steps that involves in the planning process. In the next class we will do the types of the plan. Okay student, bye.